کشمیر میں کورونا کرفیو نافذ ہے، لیکن کئی مقامات پر نجی گاڑیاں اچھی خاصی تعداد میں دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ سری نگر کے قمرواری اور دیگر چند مقامات پر نجی گاڑیاں دوپہر کو سڑکوں پر رواں دوا رہیں۔ وادی میں کووڈ مثبت معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ طبی ماہرین مکمل لاک ڈاؤن کو ہی اس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کا حل بتا رہے ہیں۔ سرکاری افسر بھی گھروں میں رہنے کی عوام سے اپیلیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ گاڑیاں سڑکوں پر کیوں اور کیسے دوڑ رہی ہیں، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ ادھر سری نگر کے اکثر مقامات پر کرفیو کے نفاذ میں عوام پورا تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ریونیو اور پولیس کی ٹیم نے لالپورہ اور کنزر کے دوسرے علاقوں میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی اور نالا فیروزپورہ سے غیر قانونی طور پر باجری نکالنے کی پاداش میں 11 ٹپر اور 3 ٹریکٹر ضبط کیے۔ ملوث افراد کے خلاف کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ لالپورہ اور کنزر میں چلائے جا رہے باجری کے کریشرز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کریشرز جو ہیں یہ نالے کی بالکل آس پاس ہیں، تو ان کو وہ اتنا مطلب یہ سکپ ہو جاتے ہیں ہماری ویژل سے بھی کبھی کبھی جب مٹیریل اٹھانے کی باری آئی۔ کبھی یہ کچھ آڈ آورس بھی چوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو نالے سے اٹھانا ہے تو اندر ڈالنا ہے، تو اتنا ان کو ایفرٹس نہیں لگتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ طے کر لیا، یہ جوائنٹ انسپیکشن تھا ریونیو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی، اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں ہونے۔ ابھی جو بھی کریشر ہیں ان کو یہ کہاں سے را مٹیریل آتے ہیں، اگر یہی نالے سے لاتے ہیں تو اللیگلی ہوگا، اگر کہیں دوسرے ڈسٹرکٹ سے لاتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس پروڈیوس کریں گے، اگر ان کے پاس نہیں ہوئے تو جو بھی پینلٹی وغیرہ جو بھی ہوگی وہ امپوز کی جائے گی۔ سری نگر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں عید پر لاک ڈاؤن میں نرمی کے کم ہی آثار نظر آ رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے نیوز 18 کو بتایا کہ عید پر لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس سلسلے میں آج ڈی سی دفتر سری نگر میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ بیکری اشیاء کی ہوم ڈیلیوری اور عید سے قابل راشن کی احسن طریقے سے تقسیم جیسے معاملات زیر بحث آئے۔ ڈی سی سری نگر نے کہا کہ عید کے حوالے سے ضروری اشیاء والے لوگوں کو خصوصی پاس دیے جائیں گے۔ وہ ان پلیس ہیں اور سلیکٹو جو اسینشل سروسز ہیں وہ ان کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہوم ڈیلیوری خاص کر جو بیکری کی ہے، وہ بھی جو بیکرز ہیں ہمارے یہاں بیکر اسٹیشن، انہوں نے بھی ملاقات کی ہے اور ان کو ویکل پاسز پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ وہ بیکری جو ہے ہوم ڈیلیوری اس کی کر سکیں۔ تو اس طریقے سے عید کے تہوار کے چلتے آج میٹنگ بھی کی گئی ہے، اس میں راشن کی خاص کر جو ڈیلیوری ہے اس کو پورا یقینی بنایا جائے گا۔ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تمام جو راشن گارڈز ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے، فیئر پرائس شاپس یا راشن ڈیپوز ہیں، ٹی ایس اوز کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ محلہ وائز پہلے شیڈول بنائیے اور اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیجیے تاکہ کہیں پر بھی بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ تو کووڈ ایس او پیز کا جو پالن ہے وہ اس بار راشن ڈسٹریبیوشن میں بھی ہوگا اور عید کے موقع پر جو راشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں زیر علاج کووڈ مریضوں کے رشتہ داروں نے آکسیجن کی فراہمی میں گڑبڑی کا الزام لگایا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ سپلائر صرف آدھے حصے تک سلنڈروں میں آکسیجن بھرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ سلنڈر 3 کے بجائے 1 گھنٹے میں ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے اور دیگر شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اے ڈی سی سری نگر حنیف بالکی نے اسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے پر پوری طرح سے غور کریں گے۔ اے ڈی سی نے اسپتال میں آکسیجن کی سپلائی بڑھانے کا بھی یقین دلایا۔ ایک تو جو آکسیجن سپلائر ہوتا ہے شاید وہ سلنڈر کی کیپیسٹی سے کم بھرتا ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ 3 گھنٹے نکلنے چاہیے تو 1 گھنٹہ نکل رہتا ہے۔ وہ ہم نے بولا ہم ان سے سارٹ آؤٹ کر کے سپلائر سے تو وہ ہم سولوشن اس کا نکالیں گے، پورے کا پورا کیپیسٹی کا سلنڈر بھر کے آئے گا۔ دوسری پرابلم یہ کی تھی کہ جب گاڑی آتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کنٹرول جو ڈسپلن ہے پورا رہتا ہے، نہیں لوگ پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے پہ سب کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے کہ تھوڑا بیک اپ جس گاڑی کا وہ دے دیں گے۔ ساتھ میں اگر تھوڑی سی شارٹیج ہے، اگر 2 گاڑیاں آتی ہیں تو تیسری گاڑی ہم انشاءاللہ آج سے جوڑیں گے تاکہ یہ 40-50 آدمیوں کا چھوٹا مسئلہ ہے، تو وہ جب بیک اپ ہی بڑھائیں گے اور زیادہ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ضلع گاندربل میں 1 سال سے زیادہ عمر کے بچے کووڈ پازیٹیو پائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ کافی تشویشناک بات ہے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں بچوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچے کووڈ سے متاثر ہونے کے کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ماہرین صحت نے امکان ظاہر کیا تھا کہ کووڈ کی تیسری لہر میں 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ضلع گاندربل میں 1 ہفتے سے ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق والدین کے ساتھ اگر بچے بھی کووڈ پازیٹیو پائے جائیں تو یہ نارمل بات ہے، لیکن اب 18 سال سے کم عمر کے بچوں
उनमें यहाँ तक कि नौज़ायदा बच्चों में भी कोविड की अलामात पाई जा रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों से कहा कि वो घरों में ही SOPs का पूरा ख्याल रखें, वरना अगर लापरवाही की गई तो मुस्तक़बिल करीब में बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस ऑफ SOPs, स्पेशली जो हम बड़े हैं, हम अगर चाहें तो ये रेंज जो है थोड़ी इन्वॉल्व बच्चों में वो कम हो जा सकती है अगर हम प्रिकॉशंस स्ट्रिक्ट लें एडल्ट की, क्योंकि ट्रांसमिशन तभी होगा जब एडल्ट होगा। बच्चे में ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है, मगर ये इनक्रीज ससेप्टेबिलिटी हो सकती है। ऑल्दो रफली जो अभी तक कोरोना का ट्रांसमिशन है बच्चों में 43% की पॉपुलेशन हो सकती है, मगर हाँ अगर पॉपुलेशन कम्युनिटी एक्वायर्ड ट्रांसमिशन इतना ज्यादा हो जाएगा तो ये जंप कर सकता है 68 to 70% तक। जिला अस्पताल रामबन में कोरोना वायरस में मुब्तला एक खातून ने गुज़श्ता शाम एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि डॉक्टर इस्मत रोनियाल की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम ने जुमे की शाम ट्रॉमा सेंटर में कायम कोविड अस्पताल में एक कोविड मुस्बत खातून की माइनर सर्जरी की। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल रामबन डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर ने कहा कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। उन्होंने कहा कि नौज़ायद का RAT टेस्ट कराया गया है जो मनफी आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन माहिर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम के जरिए किया गया है। कोविड की पहली लहर के दौरान डॉक्टर इस्मत रोनियाल के बड़े भाई डॉक्टर नवेद रोनियाल ने जिला अस्पताल रामबन और सब जिला अस्पताल बानिहाल में सैकड़ों कोविड मुस्बत मरीजों की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया था। ताहम वो खुद इस वबाई बीमारी में खिदमात अंजाम देते हुए जाबाह हो गए थे। मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी जनाब, तो हम संगलदान थे, वहाँ से हमें रेफ़र किया गया रामबन। तो रामबन में जैसे पहुँचे तो इन्होंने यहाँ पे हमारा टेस्ट किया, तो टेस्ट होने के बावजूद उसको पॉजिटिव आ गया, तो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें यहाँ पे डिलीवरी कर दी जनाब। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टरों का जिन्होंने हमें यहीं पे रखा, पॉजिटिव आने के बाद भी यहाँ पे रखा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे हमें रखा और हमारी डिलीवरी यहाँ पे अच्छी तरीके से हो। हमने ये स्टेप उसकी बेहतरी के लिए, पेशेंट की बेहतरी के लिए उठाया और हर SOP जो एज पर SOP हमने ये काम किया। हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए क्योंकि वो रेड पॉजिटिव थी, तो अपने स्टाफ को भी मैंने पहले बोल दिया था कि पूरे एज SOP जो भी है गाइडलाइंस हमें, तो उसके गाइडलाइंस पे चल के ये डिलीवरी नॉर्मली कंडक्ट करना। हज हाउस श्रीनगर में कायम किए गए कोविड वेलनेस सेंटर में मरीजों के दाखिले और इलाज का अमल शुरू किया गया है। यहाँ खासी तादाद में मरीजों का इलाज चल रहा है। तीमारदारों का कहना है कि इस सेंटर में बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। उन्होंने इसके लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला इंतजामिया का कहना है कि इस सेंटर के चालू होने से अस्पतालों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मजीद सेंटर जल्द चालू किए जाएंगे। 12 पेशेंट हैं, वो पहले ही डिफरेंट हॉस्पिटल्स या घर चले गए वापस, जो उनको रेफरेंस के बाद यहाँ भेजा गया था। बेसिकली यहाँ पे ट्राइस टाइप ऑफ रेफरल आता है, JVC से आएगा, सिक्किम से आएगा। अभी जो पेशेंट एक आया था वो पुलवामा से इनफेक्ट आया था, वो एल्डरली मदर थी हमारी। हमने बोला इसको भी टेस्ट करके वो इनफैक्ट नेगेटिव भी निकल के, लेकिन उसको बेसिक ऑक्सीजन सपोर्ट देके वापस रवाना किया जाएगा टू अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब फैसिलिटी ठीक है एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल। अभी हम सुबह भी आए तो डॉक्टर ने भी अच्छे से ट्रीट किया, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हम कल शाम को 11-12 बजे आ गए तो वैसे ऑक्सीजन मिल गया यहाँ। JVC भी कल गए, उन्होंने बोला हज हाउस जाओ, वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, फिर हमें हज हाउस में लगाया ऑक्सीजन अच्छे से। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में कोरोना कर्फ्यू जारी है। बख्तूर ब्लॉक में कोविड टीकाकारी का जायजा लेने के लिए SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी की सरबराही में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद, BMO गुरेज, तहसीलदार गुरेज, आंगनबाड़ी वर्करों और आशा वर्करों ने शिरकत की। इलाके में टीकाकारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए लोगों को गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन की गई। यहाँ पर तकरीबन 90% लोगों ने वैक्सीन लगाया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्द अज जल्द 100% वैक्सीनेशन का काम मुकम्मल करें। आखिर में आपके माध्यम से मैं गुलाब बख्तौर के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो कोविड SOPs का खास ख्याल रखें। श्रीनगर में झील डल के आसपास आज फिर कई नाजायज ढांचों को मुनहदम किया गया, लेकिन लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस कार्रवाई के दौरान लोगों की तरफ से सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। फोर शोर रोड लक्शरी मोहल्ले में
लश्करी मोहल्ले में इस ऑपरेशन में शामिल लोगों पर पथराव भी किया गया। ग्रीन बेल्ट एरिया में एक 2 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत, 2 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स, 3 टीन शीट्स, 1 रूम, 1 बाथरूम को मिसमार किया गया। एनफोर्समेंट ऑफिसर की निगरानी में लश्करी मोहल्ला NFR और लामब्रिन में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया गया कि लॉकडाउन की आड़ में खिलाफ वर्जियां करने वाले फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान मुतल्लिका महकमे ने पुलिस की मदद ली। कुछ शरपसंदों ने अचानक जमा होकर इन्हदामी कार्रवाई में शामिल टीम पर ईंटों और लाठियों से हल्ला बोलने की कोशिश की। इस दौरान प्रोक्लेन मशीन को नुकसान पहुंचा। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि जब ये ढांचे खड़े किए जा रहे थे तो अथॉरिटी तब कहां सो रही थी। लोगों ने मुतल्लिका महकमों के सुपरवाइजर्स पर रिश्वतखोरी का इल्जाम आयद किया। लोगों ने हमारे मुलाजिमीन पर पत्थर भी फेंके, उसके बावजूद भी हम इससे मरूब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे मनसिबी जिम्मेदारी है कि जहाँ भी हमें नाजायज़ तामीरात खड़ा नज़र आएंगे तो हम वहाँ बिल्कुल इंतज़ामी कार्रवाई करेंगे। ये हमारी मनसिबी जिम्मेदारी के अलावा और भी बाकी लोगों को मॉरल जिम्मेदारी है कि वो डल और इसके मुल्का इलाका जात में नाजायज़ तामीरात को रिपोर्ट करें, ताकि हमारी जो ये मुहिम है कि हमें डल को बचाना है, ये हमारा मीरास है कि हम इस पर पूरा उतरें। कंजूर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मसाजिद में चोरी में मुलविस 2 चोरों को गिरफ्तार किया। मसाजिद में कई बार चोरी हुई थी। लोगों ने पुलिस स्टेशन कंजूर में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद के CCTV फुटेज की मदद से 2 मुलविस चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने एतराफ जुर्म करते हुए अपने साथियों का नाम भी जाहिर किए। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। अगर काउंसलिंग भी होगी, अवामी दरबार जो होते हैं मगर इसमें ऐसे मसाइल नहीं उठाए जाते हैं। एक इश्यू बनाना ये चाहे कि लोगों में, ये जवानों में कैसे ये नासूर पैदा हुआ है, मस्जिदों को लूटना, मंदिरों को लूटना, गुरुद्वारों को लूटना, या तो किसी दीन का या दीन में इसमें किसी की इजाज़त नहीं है। हम एस एच ओ साहब के बहुत मशहूर हैं कि इसमें कि ऐसा किया जा रहा है, एक एक्शन ली जाती है, इसके लिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। जिला पुंछ मंडी तहसील के राजपुरा इलाके में एक ज़ाइलो गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी गहरी खाई में गिर जाने के सबब 5 साल का बच्चा रज़ाक अहमद वल्द गुलाम कादिर की मौके पर ही मौत हो गई। 3 दीगर लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद मौके पर पहुंचने वाले लोगों ने जख्मियों को फौरी मंडी अस्पताल मुंतकिल किया। 2 जख्मियों को GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। राजपुरा के गुलाम मोहम्मद, एजाज अहमद और अब्दुल अहद जख्मी हो गए। एक आदमी की तो ऑन स्पॉट वहीं डेथ हो गई थी और 3 को यहाँ उन्होंने रेफर किया। हमने उनको यहाँ डॉक्टर जो कंसर्न थे उन्होंने ऑर्थोपेडिशियन ने भी देखा, सर्जन ने अपना केस देखा, तो उन 3 में से 1 को हमने यहीं रख लिया है, उसकी ट्रीटमेंट यहीं करेंगे। 2 को हमने रेफर किया है जम्मू, तो उनकी जो है अल्टीमेट ट्रीटमेंट जम्मू में ही होनी है। एक का फ्रैक्चर था, उसको भी जम्मू भेज दिया और दूसरे का हेड इंजरी था, उसको जम्मू। टंगभर के खटीपुरा में मकान का एक सतून गिरने से 2 कमसिन लड़कियों की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पूरा टंगभर इलाका गम मातम में डूब गया। पेश है टंगभर से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट। जिला बारामूला के कटीपुरा टंगमर में इस रिहायशी मकान के बरामदे के एक सुतून ने 2 मासूम बच्चियों को मौत की अबदी नींद सुला दिया। कल तक ये बच्चियां खुशी खुशी अपने वालिदैन के साथ हंसती मुस्कुराती ईद की तैयारियों में मसरूफ थीं। किसी को मालूम ना था कि मकान का ये सुतून इनकी सारी खुशियों को गमो मातम में बदल देगा। दोनों मासूम लड़कियां खेलने कूदने में मसरूफ थीं कि अचानक सुतून की जद में आ गई। इस वाक़े से पूरे इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई है। ये दोनों बच्चियां आपस में खालाजाद बहनें थीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में लखते जिगर तकन अस्तीम अख टुकड़ अख जिगर टुकड़ अख, लेकिन अचानक गो यह बारस में पई अल्लाह ताला क्या मंशूस, लेकिन अत हालत में रबस राजी
और क्या हिकमत दाने बख्श लुकमान अलैहिस्सलाम इथे कमिस कोर में दाने अल्लाह ताला दिसमस और ये तुम कत वन मे अकल गसान परेशान कि अमिस कपर कत लेकिन अफसोस अल्लाह ताला सोच कर नियत रोजन तो क्या करे, लेकिन अफसोस अंदर के इंसान पे जाए और मुझे बोल दो आखिर आज 5 दो पलो बाबा तुझे कंजूस गुमुत तुझे सुना वनी और मैं सुस्त बात कर सुस्त तुम बोस में मुझे मित्र अंदर सुईत लेकिन कर तुम पलो ईद सिनवाजी बोर्ड दो सिनवा पहले जबरदस्त दुख बची गई मैं जबरदस्त फील कोर बेशक फील कायम सुमुख कोर मुश्किल। इस मकान में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। बरामदे पर मकान की मजबूती के लिए सीमेंट के 3 सुतून हैं। उर्फी रशीद और साहले जान नामी ये दोनों लड़कियां मकान के बरामदे में खेल रही थी कि अचानक सीमेंट का बना हुआ एक सुतून गिर गया। दोनों इसके नीचे दब गयीं। खून में लथपथ दोनों लड़कियों को सुतून हटाकर बाहर निकालने तक उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। दोनों को टंगमर्ग अस्पताल पहुंचाया गया मगर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। इस अलमनाक वाक़े से इलाके की हर आंख नम है। कयामत बर्पा कि मासूम कोर गामस टाच असल कोर दुख वनस दर्दस मज। रिहायशी मकानात की तामीर में माहिरीन से सलाह मशवरा करना लाजमी है ताकि इस तरह के हादसात से बचा जा सके। इस बीच पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पूरे हक़ाइक़ का पता लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने बारामूला में 2 पोल्ट्री फार्म्स को सील कर दिया। ज्यादा दाम में चिकन फरोख्त करने की पादाश में ये कार्रवाई की गई। छापों के दौरान बारामूला के अकबर पोल्ट्री फार्म से मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई हैं। बट पोल्ट्री फार्म को भी सील किया गया। महकमे ने मालिकान को मुतनबे किया कि अगर वो ये हरकतें जारी रखेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वो खरीदारी से कब्ल मुर्गियों के मयार की जांच कर लें। पुलवामा के शादीमार्ग तालीमी जोन से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स ने डीसी ऑफिस के पास अपनी मांगों को लेकर खामोश एहतजाज किया। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले टीचर्स ने कहा कि शादीमार्ग तालीमी जोन में कई महीनों से जोनल एजुकेशन ऑफिसर की कुर्सी खाली है। इसके सबब मुतवरिक अयाम के दौरान उनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं। टीचर्स ने जोन के लिए अफसर की तैनाती की मांग की। जोन शादीमार्ग जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से जो इसातिज़ा जो है वो आज इस मुतबरक मौके पे तनख्वाह से महरूम है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डीडीओ जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमने यहाँ पे सीओ पुलवामा से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने डायरेक्टर साहब को भी यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आज अभी ईद को सिर्फ 3 दिन बाकी है। गवर्नमेंट से सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से इतनी रिक्वेस्ट है कि टाइमली डीडीओ पावर्स नॉमिनेट करके हमारी सैलरी वागुजार करे ताकि हम खुश असलूबी से जो हमारे टीचर साहिबान है जोन शादीमार्ग के वो खुश असलूबी से ईद का जो ये फरीजा अंजाम दे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने कहा कि इंतजामिया कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पुले ने कुलगाम का दौरा किया और कोविड मैनेजमेंट और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने एमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड और चिकवांगड अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने महकमे सेहत को हिदायत दी कि वो मजीद सहूलियात बहाम रखे। उन्होंने लोअर मुंडा कोविड टेस्टिंग सेंटर का भी दौरा किया और जिला अस्पताल कुलगाम का जायजा लिया। नए तामीर शुदा ऑक्सीजन प्लांट का भी मुआयना किया। पुले ने डिग्री कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज कोविड अस्पतालों का दौरा किया। डीसी कुलगाम, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, एसपी भी मौजूद थे। आपको पता है पिछले साल से अलग अलग मीडिया पर, टीवी पर, रेडियो पर आ रहे 3 चीज़ें। एक तो घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है, हाथ की सफाई रखनी है, सैनिटाइज़र या पानी का यूज़ करना है, और तीसरा भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहना है। जहाँ तक घर में करने वाले जो इलाज है, आपका जो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए, इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
हमारे डॉक्टर्स दूरदर्शन पर, रेडियो पर बताते हैं घर में ही होममेड रेसिपी से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके और आपका मेंटल स्वास्थ्य जो है कैसे बरकरार रखे जा सके। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी ज़रूरी है जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रख सके और हम जो है बीमारी से लड़ सकें। थैंक यू सर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने शोपियां में कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम से उन्होंने वक़फ़ियत हासिल की। पुले के हमरा डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद, SSP, CMO और दीगर मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां का दौरा किया। उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट में कायम 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम्स को भी गए। तिब्बी बंदोबस्त के हवाले से उन्होंने मुताल्लिकीन के हमरा DC ऑफिस में मीटिंग की। ट्रेडर्स फेडरेशन शोपियां ने तंजीम के नायब सदर दानिश सूफी की सरबराही में डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। शोपियां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खाली पड़ी स्पेशल डॉक्टरों की पोस्टों पर तकरीरें कराने की गुजारिश की गई। ब्लड बैंक शुरू करने के अलावा फौरी रेडियोलॉजिस्ट को तैनात करने की मांग की गई। हमने उन्हें जो करंट सिचुएशन है अस्पताल की उससे आगाह किया और जो यहाँ कमी पेशी है उसे दूर करने की उसे अपील की है, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी दिन से हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, CT स्कैन भी नहीं है, ब्लड बैंक भी नहीं है और दूसरी चीज़ें भी नहीं है। इससे बारे में हमने उसे आगाह किया कि हम किन मुश्किलातों में, आपको पता है कि हिली डिस्ट्रिक्ट है, किन मुश्किलातों में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खासकर भी कोविड रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी हमने उनके साथ, डिविजनल कमिश्नर ने भी अपनी तरफ से यकीन दहानी कराई कि जो भी इस कोविड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इन चीज़ की भी यकीन दहानी की जो दूसरी प्रॉब्लम है उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि फसल इंश्योरेंस स्कीम पर काम जारी है। इंश्योरेंस कंपनियों को इस हवाले से आमादा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ज़ालबारी से मुतासर मालिकान बागात से इजहार यकजहती किया। भट्ट ने उन्हें यकीन दिलाया कि महकमा उनकी हर मुमकिन मदद का वादाबंद है। उन्होंने ज़िला कुलगाम में कल हुई ज़बरदस्त ज़ालबारी से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नईबुग, जजरेपुरा, पानिवा और ज़िले के दीगर मुतासर इलाकों में जाकर मालिकान बागात से बात की। पचन वरियन मन नुकसान गसन गवर्नमेंट बड़ वादा कर मगर पे तरन क्या तक 2000 तरन अगर तम 2000 दिमो गाँव लेवल जमा कर तम दिमो जरूरत कहें कम अज कम वुचन वस 7% नुकसान डायरेक्टर हार्टिकल्चर सबन कोर पान मान कर 7% अगर 7 हर आती क्या परसेंटेज वो गंडन मौजूद वो बीजों से हटाई थी यू सब्जी न कान थजवान बुढ़ाई कहीं आज जबरदस्त नुकसान। अभी भी ओले ज़मीन में पूरे के ताज़ा हैं, तो हमदर्दियाँ सरकार की हैं ज़मींदारों के साथ, बाग भाइयों के साथ पूरी। तो यही गुजारिश रहेगी इनको कि वो एक कोई मैनकोजिब या कोई फंजिसाइड करें, थोड़ा सा यूरिया 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के करें ताकि थोड़ी ये रिकवरी हो जाए, ये लीफ ठीक हो जाएं, थोड़ा कहीं फ्रूट अगर बचा है तो वो ठीक रहे। बाकी हम क्या कहेंगे, ये बदकिस्मती अल्लाह ताला की तरफ से एक नागहनी आफत। हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले लेकिन इसमें रिस्पॉन्ड नहीं आता इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, इसमें वो भी थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट हो जाए। सरकार की कोशिश है कि कम से कम एक ही डिस्ट्रिक्ट हो जाए एज ए पायलट प्रोजेक्ट, उसमें हम लगे हुए हैं। दोबारा उसमें और भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा और कोशिश होगी कि होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल ने रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के निफाज का हुक्म दिया है। इंतजामिया के अफसरान ने कर्फ्यू के निफाज और दफा 144 पर अमल दरामद का जायजा लिया। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए उन्होंने SOPs और गाइडलाइंस पर चलने के अहकाम जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के CEO संतोष सुखदेव ने पुलिस अहदेदारों के हमरा करगिल के मेन बाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मर्चेंट एसोसिएशन से कहा गया कि वो सामान उतारते वक्त SOPs का पूरा ख्याल रखें। तेजी से केसेस बढ़ रहे पूरे हिंदुस्तान में, और करगिल में भी अगर बात की जाए तो केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं हमारे, और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें हैं तो हमें चाहिए कि इसका एहतियात बरतें और जितने कम केसेस हो उतना कंट्रोल में रखें इसको। इसके साथ ही हमें कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो बंदे सोनमर्ग या वहाँ से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, वो सैंपल देने के बाद घर जाने के बाद क्वारंटाइन ना रहते हुए बाहर घूम रहे हैं।
उनके लिए मैं स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहूँगा, अगर हमें पता चलता है कोई बंदा ऐसा बाहर घूम रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, FIR लॉन्च की जाएगी और उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। लेह में जिला इंतजामिया ने कल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर रखा है और शहरियों से अपील की है कि वो उन्हें ताउन फराहम करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर मुकम्मल तलाशी ले रही है। नॉन लोकल मजदूरों की लद्दाख आमद के बाद से खित्ते में कोविड केसों की तादाद अचानक बढ़ गई है। 2 महीनों में 1185 कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई। गुज़श्ता साल से लेकर अब तक कोविड के नतीजे में 108 अमवात हुई हैं। इनको हमने अलॉट किया हुआ है तो वो घर घर पहुंचाते हैं। अगर किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो हमारे जो गाड़ियां हैं जो जिनको हमने यहाँ पर लगाया हुआ है कि घर घर सब्जियां पहुंचाने के लिए, घर घर मीट पहुंचाने के लिए, तो वो हमारे पास अभी अगर किसी को भी कोई इश्यू तो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल रूम में भी आप फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने इंफॉर्मेशन इसमें सेंटर भी हमने इसमें दिया हुआ है इनके बारे में। तो जो भी अगर आपको कोई ग्रीवेंस हो, जो कुछ भी आप लोगों की ज़रूरत हो तो हमें हमारी इस कंट्रोल रूम के थ्रू आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। पुलिस का और जो मेडिकल वालों का और जो हमारे मजिस्ट्रेट्स वगैरह है उनका बहुत ज़्यादा ताउन किया। जम्मू कश्मीर में कोविड के नतीजे में अमवात की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में 60 कोविड मुतासरीन की मौत हो गई है। जम्मू में 42 जबकि कश्मीर में 18 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4788 पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर में 3259 केस सामने आए हैं। जम्मू में 1529 नए केस रोशनी में आए। कोविड से सेहतयाब हो जाने वाले 2500 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 1590 मरीजों को अस्पताल से घर जाने दिया गया। जम्मू में 910 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। जम्मू कश्मीर में 46,535 कोविड पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। उधर जम्मू कश्मीर के स्पेशल सेक्रेटरी बराए फाइनेंस डॉक्टर शमीम भी कोविड के नतीजे में फौत हुए। उन्होंने GMC जम्मू में आखिरी सांस ली। कस्बा पामपुर में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। वैन पामपुर में एक खातून की कोरोना से मौत हुई। कस्बे में कल भी एक नामालूम शख्स की कोरोना से मौत वाक़ई हुई। इसको आज पामपुर में SOPs के तहत दफन किया गया। तहसीलदार ने लोगों से शब कदर के मौके पर बाजारों में भीड़ जमा न करने की तलकीन की। हमारी आज भी पामपुर में एक वुयन पामपुर में कोविड डेथ हुई है। कल भी एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, कोविड डेथ उसकी हुई थी। तो आने वाले दिन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। मेरी लोगों से अपील है कि खासकर जो माह मुबारक के जो आने वाले आयाम हैं जहां लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, तो इस हवाले से मैं अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अभी और थोड़ा सब्र करें, क्योंकि ये हमारे मुश्किल हालात हैं। घरों से बहुत कम निकले और तरीके से अगर कोई एसेंशियल कमोड चीज़ लानी है तो उसके लिए भी तरीके से दुकान खोलिए, तरीके से दुकान पर जाएं। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सचिन कुमार ने कोविड अस्पताल का दौरा किया और दरकार बंदोबस्त और ज़रूरियात का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टरों से गुफ्तगू करके अस्पताल में उन्हें दरकार ज़रूरियात को जानने की कोशिश की। सचिन कुमार के मुताबिक शोपियां में कोविड की सूरत हाल अभी काबू में है। अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड का पता नहीं चला है। लोग इंतजामिया को पूरा ताउन फराहम कर रहे हैं। आपसे सावधानियां बरतनी है। अगर वो बरतना नहीं शुरू करेंगे तो चीज़ें क्या होगी, हमारे हाथ से फिसल जाएंगी। अभी हम जिस हिसाब से काबू में हैं, जिस हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल किए हैं, अगर उसके बाद अगर इस तरीके से बेसिकली अगर कंटिन्यू वो करना होगा तो लोगों का सहयोग चाहिए। आई थिंक लोग सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। मार्केट में भी देखता हूँ मास्क पहन के चलते हैं हर कोई, और भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, और वैक्सीनेशन के लिए सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये काफ़ी, हमने जो फर्स्ट डोज है वो अचीव कर लिया। और जिला किश्तवाड़ में कोरोना कर्फ्यू नाफिजुल अमल है। पुलिस और सिविल इंतजामिया कोविड मर्ज से अवाम को आगाह करने के लिए दिन भर लाउड स्पीकरों से ऐलान करा रहा है। अवामी मकामात पर लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। दुकानें और दीगर कारोबार बंद हैं। वसार, भूपनगर और कलियड़ इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। कल 80 साल के एक ताजिर की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। 5 दिनों में कोविड से ये तीसरी मौत हुई है। जिला डोडा में भी दूसरी बार वीकेंड लॉकडाउन जारी है। जिले में तमाम बाजार बंद रहे, सड़कों से गाड़ियां भी गायब हैं।
मेडिकल शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और दीगर ज़रूरी खिदमात फराहम करने वाली दुकानों और इदारों को खुला रखने की इजाज़त है। पुलिस ने पूरे ज़िले में जगह जगह रुकावटें खड़ी की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में 24 घंटों के दौरान कोविड का शिकार 3 लोगों की मौत हो गई। गंदू बलिसा और चिनाब खित्ते में लोगों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कोविड केसों में इजाफा होने पर लगाया गया कोरोना कर्फ्यू अभी जारी है। यहां सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड्स खड़ा कर दिए हैं। गंदू बलिसा में भी लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। उधमपुर में जिला इंतजामिया ने मुकम्मल तरीके से वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। तिजारती मराकज़ में वीरानी छाई रही। पुलिस, सिविल डिफेंस और नीम फौजियों दस्तों के जवान सड़कों पर मुस्तैद खड़े नजर आए। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन एडवोकेट सुरेंद्र खजूरिया ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि ज़िले में हालात ख़राब हो रहे हैं, इसके बावजूद लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। स्वयं करेंगे तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। एक अपील लोगों से और भी है कि कृपया अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, और वैक्सीनेशन जो है ड्राइव जो चल रही है, जो कि निःशुल्क सरकार की द्वारा दी जा रही है, उसका भी इस्तेमाल करें ताकि हम इस महामारी से जल्द निजात पा सकें। लेह डिस्ट्रिक्ट में अचानक कोविड केस बढ़ जाने पर इंतजामिया हरकत में आ गया है। सरकारी ढांचे पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अस्पताल, बस स्टैंड और अहम जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया। जगह जगह मजिस्ट्रेट लोगों को मुफीद हिदायत देते हैं। लद्दाख पुलिस भी ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर इश्तियाक काचू ने न्यूज़ 18 को तफसीलात से आगाह कराया। लोग भी बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ में, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और हम भी लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे ही जैसे लास्ट ईयर भी आप लोगों ने किया था, इस साल भी जैसे आज तक चलते आ रहा है लोगों से हमारे, कि वो भी हमारे कोऑपरेट करें, घर पे बैठें, ताकि हम भी अपना काम अच्छे से कर सकें। करगिल में कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मजहबी रहनुमाओं ने पूरा एहतियात बरतने की लोगों से गुजारिश की है। अहले सुन्नत करगिल के नायब सदर शहनवाज हबीब वार ने भी इंतजामिया के साथ ताउन करने की लोगों से अपील की। ऐसा एक ये मंत्र याद रखना है, अपने आप को अननेसेसरी लोगों के बीच में ना लीजिए। अगर किसी मजबूरी की वजह से जाना भी पड़ता है तो 2 मीटर का एटलीस्ट बीच में गैप जरूर रखिए। उस आदमी के साथ हाथ ना मिलाएं, किसी के साथ हाथ ना मिलाएं। अगर आपके पास पानी, साबुन वगैरह अवेलेबल है तो हाथ जो है आधे घंटे में हर इंटरवल पे धोते रहिए। क्यों हाथ? ताकि आप अपने नाक को, हाथ, मुंह को, आंख को टच करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कोविड फैल सकता है। नहीं तो सैनिटाइजर अपने हाथ जेब में रखिए। सैनिटाइजर से हर टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, और सबसे जरूरी चीज मास्क लगा के रहिए। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज अहमद खान ने गुरबाथंग में मौजूद कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। फी मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखने वाला ये प्लांट 1 करोड़ 38 लाख रुपए के सरफे से बनाया गया है। प्लांट की शुरुआत के बाद करगिल में 1000 लीटर फी मिनट मेडिकल ऑक्सीजन दस्तयाब हो गई है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद हसन अरमान मूसवी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद अली चंदन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर ज़ंस्कार अफेयर्स के अलावा इंतजामिया और महकमे सेहत के अफसरान मौजूद थे। हम जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल जो भी इन्वॉल्व है, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं अपना कोविड को लेके। लेकिन इसमें जैसे कि आपके माध्यम से मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अरेंजमेंट जो भी हो वो करें, लेकिन आवाम के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर किस्म के एहतियात, जो भी SOPs जो एडमिनिस्ट्रेशन से निकलता है आपका, उस पर अमल करना जो है बहुत ज़रूरी है। जम्मू में कोविड मुतासरीन के लिए कुछ लोग खाना दस्तयाब करा रहे हैं। सिख मोटर साइकिल क्लब कोविड मरीजों के लिए खाना बना रहा है। इन मरीजों की दहलीज तक खाना पहुंचाया जा रहा है। 5 से 7 सिख नौजवानों का ग्रुप कोविड मुतासरीन को मुफ्त में ग़िज़ा मुहैया करा रहा है। इन लोगों ने 400 ख़ानदानों को ग़िज़ा फराहम करने का इंतज़ाम किया है। इन लोगों ने अज़्म किया कि वो ये बात यकीनी बना चुके हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद ग़िज़ा से महरूम न रहे।
6 में से किसी एक को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये 6 मेंबर्स पीछे हटेंगे, रोटेशन में दूसरे 6 मेंबर्स आएंगे। तो इस ढंग से हाँ रिस्क इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इवन कि हम भी रिस्क में हैं। डेली जो हम 50-60 फैमिलीज़ को जो कि कोविड पॉजिटिव है, जिनके घर के आसपास भी कोई नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम जाके उनको डिलीवर कर रहे हैं। वी आर आल्सो एट रिस्क। बट अब ये है कि राइट नाउ वी शुड कम फॉरवर्ड, अभी आना चाहिए, ये दिस इज़ द राइट टाइम एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें वी हैव गॉट दैट चांस। जिला पुंछ में उस्मान गनी वेलफेयर ट्रस्ट ज़रूरतमंदों और गरीबों को मदद फराहम कर रहा है। माह रमज़ान में गरीबों की इफ्तारी और सहरी की ज़रूरत पूरी करने की भी कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने पीने का सामान उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। मुंतज़मीन का कहना है कि वबा के दौर में कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए वो सरगर्म है। पूरे अमल में कोविड SOPs की पासदारी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस टाइम इस मोहलक बीमारी ने अपनी लपेट में लिया हुआ और इससे सारी इंसानियत इस टाइम मुतासिर है। आप देखें कैसे हालात चल रहे हैं। तो हमने इस सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए अरकान ट्रस्ट ने यह तय किया कि हम जो लोगों के घरों में जाकर गरीब आवाम तक ट्रस्ट की तरफ से जो खिदमात थे वो सामान वगैरह उनके घरों में पहुँचाया जाए। एक आदमी जाए या 2 आदमी जाएँ, वो जाकर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए उनको सामान दिया जाए। 1971 में हिंद पाक जंग में फैसला कुन फतह के 50 साल की तकमील पर जश्न मनाया जा रहा है। जवानों की बेलौस कुर्बानियों को खराज पेश करने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष की तकारीब का सिलसिला जारी है। जीत की मशाल स्वर्णिम विजय मशाल उन इलाकों से गुजारी जा रही है जहां पर उस दौर में होरेज मौरका आराइयां हुई थी। पलनवाला में ब्रिगेडियर राजीव कौल ने मशाल को वसूल किया। सैलान वाली गांव में वीर नारी श्रीमती पुष्पा देवी की रिहाइश पर यह मशाल पहुंचाई गई। वो शहीद लॉन्स नायक गुल्लू राम की बेवा हैं। क्रॉस सोर्ट्स ने वीर नारी के एहतराम में उन्हें तोहफे पेश किए। कठुआ के वार्ड नंबर 16 कालीबाड़ी इलाके में लोगों ने एक निजी अस्पताल इंतजामी के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लोगों ने बताया कि यह अस्पताल उन घरों के पास है, यहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि जिन कोविड मरीजों की मौत हो जाती है तो अस्पताल उनकी लाशें उनके घरों के करीब एक कमरे में रखाता है। इस्तेमाल होने वाले कपड़े और दस्ताने बाहर फेंक दिए जाते हैं। लोगों ने बताया कि उन्हें वायरस की चपेट में आ जाने का डर सता रहा है। ब्लॉक बोनियार में कोविड पॉजिटिव केसों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए बेदारी पैदा की गई। BMO बोनियार ने अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ आगाही मुहिम चलाई। लोगों से कहा गया कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें। BMO ने चंदनवाड़ी और बोनियार समेत दीगर कई इलाकों का दौरा किया। कल के जो पॉजिटिव लिस्ट आई है उसमें बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है पेशेंट्स में, पॉजिटिव पेशेंट्स में, और ख़ासकर चंदनवाड़ी में जहाँ पर 12 से ज़ायद हमारे केसेस पॉजिटिव आ गए हैं। तो आज इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पर माइकिंग और अवेयरनेस का प्रोग्राम किया और लॉकडाउन को कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत हद तक इसमें हम कामयाब भी हो गए। आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ताउन कर लीजिए, वैक्सीन करिए और अपने आप को खुद बचाइए। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट और जी शूर लोगों की तरफ से ये फिर ऐलान किया जाता है कि अपने घरों में रहिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और एक जगह इकट्ठे जमा मत होइए। कोरोना के चलते लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने स्वस्थ रहो और खुश रहो प्रोग्राम का आगाज किया। कंपनी कमांडर मेजर राहुल की क़यादत में पालपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। लोगों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ और सैनिटाइजेशन के बारे में जानकारी फराहम की गई। लोगों में सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम किए गए। कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई। कुपवाड़ा में आर्मी की तरफ से प्री रिक्रूटमेंट रैली फतह हेरी में इख्तिताम पजीर हो गई है। शुरका को दूसरे मरहले के तहत ट्रेनिंग फराहम की गई। इन 48 नौजवानों को फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान के उमूर की जानकारी फराहम की गई। नौजवानों को ARO और TA की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली भर्ती रैलियों में शिरकत के लिए अहल बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव पथानिया ने कामयाबी से ट्रेनिंग पूरी करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। पुंछ में लॉकडाउन के दौरान शहर के सभी बाजारों और गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया। इंतजामिया की जानिब से लगातार लोगों को घरों में रहने की तलकीन की जाती रही। पुलिस की जानिब से इलाके के सभी दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया।